মাল শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কলোনি মাঠ। বর্তমানে পুরসভার তত্ত্বাবধানে কলোনি মাঠ জুড়ে ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী রথমেলার আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। আর তার মধ্যে আদিবাসী জনসমাজের কিছু নেতৃত্ব এবং বাসিন্দারা কলোনি ময়দান নিয়ে ফের একবার পাল্টা দাবি তুললেন। তাদের বক্তব্য, এই মাঠের এলাকা বংশ পরম্পরায় তাদের পূর্বজদের, অথচ মেলা আয়োজন নিয়ে তাদের কোনো কিছুই জানানো হয়নি। তারা উৎসব অনুষ্ঠানের বিরোধী নয়, কিন্তু তাদের না জানিয়ে কিংবা আলোচনা না করে কেন এই ধরনের আয়োজন তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও পুর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর জানিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে পূর্বে বহুবার আলোচনা হয়েছে, ফের আলোচনা হবে। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ তথা আদিবাসী জনসমাজের মাল ব্লকের দুই নেতা অমরদান বাকলা এবং বাবলু মাঝি মঙ্গলবার বিকালে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। মাল বাসস্ট্যান্ডের আদিবাসী সহায়তা কেন্দ্রে সাংবাদিক সম্মেলনে বাবলু মাঝি অভিযোগ করেন, মাল শহরের কলোনি মাঠ বংশ পরম্পরায় আদিবাসী পরিবারের। ওই পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও দেওয়া রয়েছে। রথমেলা আয়োজনের নামে অর্থ রোজগারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, অথচ মাঠের মালিকানাধীন ব্যক্তিদের কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি, আলোচনাও করা হয়নি। আমরা বিষয়টি প্রশাসনিক স্তর এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন স্তরে লিখিতভাবে অভিযোগ পাঠিয়েছি। জমির দাবিদার বলে দাবি করা এক ব্যক্তি রাজেন মাহালি বলেন, আমরা চাই মেলা হোক, কিন্তু আমাদের সাথে আলোচনাও হোক। এদিকে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রুমা দাস দেব বলেন, বর্তমানে মাল পুরসভার পুরপ্রধান বাইরে রয়েছেন, এ বিষয়ে যা বলার উনিই বলবেন। পারিবারিক কাজে মাল পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন সাহা বর্তমানে মহারাষ্ট্রের পুনেতে আছেন। মোবাইলে তার সাথে যোগাযোগ করলে স্বপনবাবু বলেন, কলোনি মাঠ মাল শহরবাসীর ভাবাবেগের সাথে যুক্ত। রথমেলা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা সহ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান সহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। জমি সংক্রান্ত বিষয়টি আদালতের বিচার বিবেচনাধীনে রয়েছে। আমরা ওই আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের পূর্বেও সহযোগিতা করেছিলাম, এবার ফের পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, এর পূর্বেও কয়েক দফায় কলোনি মাঠ নিয়ে দাবি পাল্টা দাবি উঠেছিল। এদিকে রথ মেলা আসন্ন, ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী মেলাকে কেন্দ্র করে জোরদার প্রস্তুতিও শুরু করেছে। মাঠ জুড়ে স্টল তৈরি করা হয়েছে। শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূত্রধর বাড়িতে রথ রয়েছে, সেখান থেকেই রবিবার রথ শহর পরিক্রমায় বের হবে। পুরসভার পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি এখন জোর কদমে শুরু হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली डुअर्स न्यूज़। सभी को जय जोहार, नमस्कार। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग पर्टिकुलर एक विशेष मुद्दा को लेके कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये जो माल बाज़ार है और माल बाज़ार के अंदर पे जहाँ रात मेला लगता है, रात मेला, तो वो पूरा ज़मीन आदिवासियों का है। और ये आदिवासी ज़मीन होते हुए भी अभी तक इसको लेकर किसी भी प्रकार की ओर से, किसी भी माल म्यूनिसिपैलिटी की ओर से अभी तक इसको लेके कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। क्योंकि इसको लेकर 2020 में भी इसको लेकर एसडी ऑफिस में बैठक हुआ था। उस बैठक में हम लोगों ने BCW जलपाईगुड़ी में चिट्ठी अप्लाई किया था कि इस ज़मीन को लेकर, जो आदिवासी का ज़मीन है उसको आदिवासी को इसका हक मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए ये ज़मीन। तो उसको लेकर हम लोगों ने अप्लाई किया था और उसी को लेकर यहाँ पे बैठक भी हुआ था, लेकिन अभी तक उसका कोई सही सल्यूशन नहीं निकला है। जो कि इसका पूरा दायित्व चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी माल बाज़ार को दिया गया था, लेकिन उसको 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ बीते 27 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माल बाज़ार म्यूनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन है वे कहते हैं कि ये माल बाज़ार में जो रथ मेला जो लगता है वो इलीगल नहीं है। यहाँ पे सबका सलाह मशवरा से यहाँ पे जितने भी वार्ड काउंसिलर हैं उनको लेकर कमेटी बनाकर यहाँ पे रात मेला किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो हम लोगों का कहना है कि मेला लगे या पूजा हो, इसको लेके कोई आपत्ति नहीं है हम लोगों को, लेकिन जो मालिक है, उस ज़मीन का जो मालिक है, उनको कमेटी में क्यों नहीं रखा जाता है, या उनको परमिशन क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि वो आदिवासी है बोल के, या वो आदिवासी है इसलिए उनको उस कमेटी में नहीं रखा जाता है, या उसका मालिक उसको वहाँ पे पूछा नहीं जाता है, या जो भी मैंने वहाँ पे जो कार्यक्रम होता है उसमें उसको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़मीन आदिवासी का है, और वहाँ पे केवल पूजा नहीं, वहाँ पे जो मेला लगता है वो एक इनकम सोर्स के लिए होता है। वहाँ पे 15 लाख 20 लाख का एक इनकम होता है। तो अगर वह आदिवासी के ज़मीन पे 15-20 लाख रुपये अगर इनकम होता है, तो जो मालिक है ज़मीन का उनको भी वहाँ से शेयर मिलना चाहिए, कम से कम उनको 50% मिलना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी उस ज़मीन का मालिक है। लेकिन आज तक उनको पूछा नहीं जाता है, ना ही किसी कमेटी में रखा जाता है। इसीलिए हम लोगों ने
एक कंप्लेन दिया है, जिसको लेकर हम लोगों ने एसडीओ के माध्यम से एसडीपीओ को, थाना को, एसपी को, डीएम को, साथ ही बीसीडब्ल्यू को हम लोगों ने दिया है कंप्लेन। और हम लोगों ने आपत्ति जताया है कि ये बिना परमिशन के यहाँ पे मेला लगता है, क्योंकि जो मेन ओनर है उनको पूछा नहीं जाता है, या उनको किसी प्रकार का कोई भी वहाँ से जो इनकम होता है उसका कोई शेयर नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है उसको सही सॉल्यूशन हो, और चेयरमैन को जो दायित्व दिया गया था उसको लेकर, इस ज़मीन को लेकर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, जिसको लेकर हम चाहते हैं कि ये जो मेला है वो भी इलीगल है, क्योंकि बिना मालिक का परमिशन से हो रहा है। तो इसी को लेकर हम लोग कंप्लेन किए हैं। साथ ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन किए हैं, उनको कॉपी किए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह भी माननीय मुख्यमंत्री जो सरकारी ज़मीन को लेकर जो रिकवर करने के लिए जिस प्रकार इनिशिएटिव ली है, हम भी चाहते हैं कि जो आदिवासी ज़मीन जो माल बाज़ार के बीचों बीच है, जहाँ पे इलीगल ढंग से यहाँ पे कार्यक्रम होता है, उसको लेकर भी हमारे आदिवासी को उसका ज़मीन को अधिकार को दिलाए, ये आशा भरोसा करते हैं। उसको लेके भी हम लोग चिट्ठी किए हैं। और 2020 में जो सेटलमेंट कर लेकर जो बैठक हुआ था, उस बैठक को भी अभी तक 4 साल बीत जाने के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इसको लेकर भी हम चाहते हैं कि इसका लेके उचित व्यवस्था हो, नहीं तो हम लोग इसके लेके आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम चाहते हैं कि ये मेला जो बिना परमिशन का होता है वो लीगली ढंग से हो, वो परमिशन लेके किया जाना चाहिए। और जो इस मेला से जो इनकम होता है वो उस इनकम का 50% हिस्सा आदिवासी जो मालिक है ज़मीन का उनको मिलना चाहिए। ये जो ज़मीन जो है हम लोग का पूर्वजों का है, जिसको पूर्वजों ने इस ज़मीन को संभाल के रखते हुए, मेरा पिताजी मैं इस ज़मीन के लिए बहुत कुछ लड़ा है। लड़ने के बावजूद भी हम लोग को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग जितना भी सरकारी ऑफिस जो है, एसडीओ, बीडीओ, माल म्यूनसिपलिटी चेयरमैन, उसके बाद में आपका ये बेलोरो, हाँ, जितना भी सरकारी ऑफिस है उन लोगों के पास में हम लोग कॉपी करके एक बार गए भी थे वहाँ पर दखल लेने के लिए, पर वहाँ हम लोगों को मार पीट के भगा दिया गया था। और उसके बावजूद भी मेरा घर में ये पुलिस भेज दिया हम लोग को अरेस्ट करने के लिए, जो कि हम लोग का खुद का ज़मीन को होते हुए भी हम लोग को मार खा के आना पड़ा। इसके लिए हम लोग बहुत परेशानी झेले हैं। हम लोग मैंने गरीबी हाल से हम लोग मैंने गुजर रहे हैं। इसके लिए हम लोग चेयरमैन से कितनी बार हम लोग बात करना चाहा, पर वो चेयरमैन मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को कुत्ता जैसे हम लोग को कर दिया है। और साथ ही हम ये हम लोग इसके लिए हम लोग कितने बार हम लोग चेयरमैन से 2-3 बार भी गए थे हम लोग। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, इसके लिए हम पिछले कितने साल से हम टैक्स भी देते हैं, ज़मीन का टैक्स देते हुए भी इतना कुछ मतलब कहते हुए भी वहाँ से बोलता है जी ये ज़मीन अभी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी नहीं है। जब किसके नाम पे है? ज़मीन हम लोगों को के नाम पर है। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम में नहीं है, मेरा भाई लोग का नाम में है। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ से भगा भी दिया जाता है। और जबकि प्रॉपर्टी का जो है हम लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्स हम लोग भरते हैं। और चेयरमैन इससे रथ मेला करता है। रथ मेला करते हुए भी मैंने हम लोग को कुछ देता नहीं है, कुछ भी नहीं देता है। और जब इसके लिए हम लोग जाते हैं म्यूनसिपलिटी में तो हम लोग को कुत्तों का जैसा व्यवहार करते। हम लोग का डिमांड यही है कि ये ज़मीन को हम लोग को मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये ज़मीन हम लोग को पूर्वजों का है। हम लोग ये ज़मीन का देखभाल अभी पावरा पेटनी द्वारा अमरधन बाकला और बाबलू माझी को दिए रखे हैं। মানে কথায় আমি কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না। চেয়ারম্যান যেহেতু একটু বাইরে আছে, উনি এসে সম্পূর্ণ যা বলার উনি বলবেন।